Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th Economics chapter number 7 Population. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 3 of the chapter. So before moving to the certain portion of the today's current topic, let us have a short summarization of the topic that we have seen on the previous video. Previously we have seen about the size and the population growth rate of the population in India. For seeing that portion in a very detailed manner, we must know the concept in a very clear manner. What is the size of the population? Size of the population means what was the correct number of the population that we have seen in the India currently, that is considered as the size of the population. For example, 2011 census reading was 121.02, which is considered as the size of the people in crores. 121.02 crore is the size of the population. But what about the portion of the growth rate? Growth rate means the average percentage of the every year increment of the population is considered as the population growth rate, in which we have seen that the growth rate of the 2011 is 1.47 or 48 decimal point. In this sense, the percentage showing the population growth is considered as the population growth rate, and the portion of the size of the population is considered as the size of the population. On this portion, we have seen a table, data table supporting the portion. The data table was from the year 1901 to 2011, which means approximately of the 110 years. In the data table, we have seen particularly how the years has been changed, and due to the change in the years, how the size of the population also started to change. The increase or decrease in the population was been seen up in a very detailed manner. On the year 1901, we have seen that it was the population was in 23 point crore, means 23 point decimal somewhat crore in the population was being seen up, which was having the population growth rate of plus 0.08. In this manner, we have seen up to the portion of the 2011. At the last, we have seen that it was 121.02, which was having the growth rate of the 1.47 percentage. So approximately each and every year, it was been going increasing and increasing. We have seen 23 to 25, 25 to 25.1, then we came to the 27, then 29, 33, 31, 36. In this manner, it started to increase and increase, and it increased to the 121 on the year of 2011. We saw that how we have to represent the portion in a diagram. So in the diagram, we have taken from the year 1951, as the 110 year slab was being given up. 11 bar details of the data was been given up. 11 showing in one table will be little complicated. That's why we taken from the 1951, which was having the population growth of 36.1. So from that we have made the diagram. In that we have made the single bar diagram. For that portion we have made the Y ray and X ray. On the Y ray we kept the population, which means the dependent one, and the year independent was being given on the portion of the x-axis. After that we have made the bar according to the portion. Taking the class, we have taken the differentiate of the 20 years or 20 crores of the differentiate of the class. 20 to 140 we have allotted on the y-axis, and the x-axis we have started from 1951 to 2011. Already the y-axis was been allotted with the population, so year was been allotted by the x-axis, but in that already the data was been provided for the every 10 year census reading, so we have taken the gap of the 10 year on the x-axis. Then we started to allocate the data 36.1, 43 point this. In this manner we allocated up to the 2011. After allocating to the 2011, we have analyzed that the continuous growth was been seen from the year 1951 to the 2011. In this manner we have made
made the data table. So diagram also we have made it. From the data table we have made the diagram. Then we have seen about the analysis of the a portion of the diagram. So what was the analysis? In the analysis we have to do from the starting of the year. So 1901 to 1921, if you are seeing, there was an increase in the 5.7% of the population, but this increase was being seen up in a very slow portion. But at the year of the 1921, there was a decrement of the population by minus 0.03. Why? Due to the various famine diseases such as cholera, influenza, malaria, plague. So this portion has created a huge death rate, and due to which the decrease of the population was being seen up in a very minus portion. After that, detailedly we have seen about the portion of the, we can say that year of the divided. The year of the divided was considered as 1921. Why? Because there the minus portion was being seen up. After that, continuously from 1931, the increment of the population was being seen up. So this was the second analysis. Third analysis, we have seen that from 1951, the planning for the population control was being started up. Why? Because in that portion we have seen 36.1. In the next 50 decades, means 2001, it rose up to 102.2% of the crore people in the increment, which shows that 66.6 crore has been increased in that last 50 decades. So the India started the portion of the planning. After planning also the increment didn't stop, but the growth rate literally start to decrease. China was on the first number of the increment, but in the population growth increment, but still India was holding the second position, and in that, according to the reading, it has been having the portion of 121.02 crore population in India at the time of the reading of 2011. The demographic people, even that was said by them that on the year of 2000, after the 2000 is passing, the India will be having the population growth of the benchmark of 100 crores more people population will be seen in the India, and it was proven right by us. Even on the estimation of 2011, it was been seen up that whenever the year of 2011, it was having 93.11 portion of population. So it was being considered that wherever this portion will lead us to 139.98 population crore growth in the year of 2011 to 2025. So the current portion of the reading will be done on the 2021. So the waiting of the eagerness of the people is there, whether the India is having the first rank on the portion or not. Up till that we have seen in a very detailed manner. So today we are going to move on with the further portion of the chapter. So let us move on with the further portion of the chapter in a very detailed manner in the further video. So students, now let us move on with the further portion of the chapter. Last time we have seen about the size and the population growth of the population. So today we are going to see the male and the female in India, gender distribution in population in India. So let us have a short summarization before seeing that. हमने ये देखा कि ओवरऑल टोटल कितना पॉपुलेशन देखा जाता है, उसमें से पर्टिकुलर ईयर में कितने मेल्स थे और कितने फीमेल्स थे, फीमेल का प्रोपोर्शन कितना देखा गया और मेल का प्रोपोर्शन कितना देखा गया, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. The number of males and females of the total population in different years in data deficits the male female ratio. कहीं ना कहीं ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंट ईयर में डिफरेंट कितने लोग यानी कितने मेल्स और फीमेल्स देखे जा रहे थे, इस पोर्शन के ऊपर यहाँ डिटेल में दिया गया है. सो टेबल को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर एक छोटा सा एनालाइजेशन करते हैं. ओके, सो टेबल की बात करें तो टेबल किसकी है, तो टेबल है मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन. ईयर दिया गया है यहाँ पे 1951, 1991 एंड 2011. देखो कंटिन्यूटी ईयर नहीं दिया गया. 1951 से डायरेक्ट 1991 यानी 40 ईयर्स का गैप देखा गया. उसके बाद 1991 से डायरेक्ट 2011 यानी 2001
एंड 2011 यानी 20 ईयर्स के गैप में ये पोर्शन दिया गया। तो यहाँ पे जो है 40 ईयर्स का गैप दिख रहा है और यहाँ पे 20 ईयर्स का, यानी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसका डायग्राम नहीं बना सकते। प्रोबेबली ये होता है कि इक्वल जब वी कैन से दैट डिस्क्रीट डेटा पे जब दिया जाता है तब उस चीज़ को हम पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। और मेल फीमेल अगर कंटिन्यूअसली 4 साल का दिया गया होता 1991, 2001, 2011, वैसे 1951, 1961, 71 इस तरीके से कंटिन्यूटी में दिया गया होता तो शायद हम ग्रुप्ड बार डायग्राम इस चीज़ के ऊपर बना सकते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल पॉपुलेशन करोड़ में दिया गया है, सेकेंड है फीमेल पॉपुलेशन इन करोड़ एंड देन टोटल इन करोड़। सो 1951 में अगर आप देखो तो 18.55 जो है देखा गया था पोर्शन ऑफ द मेल कैटेगरी। सो मेल कैटेगरी में 1951 में 18.55 और फीमेल में देखा गया 17.56। जब ये दोनों को टोटल करोगे तो 36.11 देखा जाएगा। सो टोटल 36.11 जो था उसमें से 18.55 मेल थे और 17.56 फीमेल। सो 51% ग्रोथ रेट कितना था, 51.37% पे देखा गया। और यहाँ पे जो फीमेल है उनका टोटल रेट जो है परसेंटेज में 48.63, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 100% हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं माइनर डिफरेंसेस देखा गया है मेल और फीमेल में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम 1991 की बात करते हैं जिसमें 43.92% यानी 92 करोड़ के लोग मेल के रूप में देखे गए थे। वही फीमेल की अगर हम बात करते तो 40.71 देखा गया है। टोटल पॉपुलेशन 84.63 देखा गया कंपैरेटिव टू 51 और 91। अब इसमें इंक्रीज जो है मेल के अच्छे से हुआ है और एक परसेंटेज था 18 में से 17। सो यहाँ पे 1 करोड़ का डिफरेंस जो है 1951 में देखा गया था। बट अगर यहाँ पे देखो 1991 में तो 3 करोड़ का डिफरेंस देखा जाता है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल रेशियो। तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 51.90 देखा गया है जो कि इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे 48.10 यानी डिक्रीज थोड़ा होता हुआ नजर आया, क्योंकि ऊपर के परसेंटेज और नीचे के परसेंटेज के स्लैब में अगर हम डिफरेंस देखें तो 50% 0.50 डेसिमल पॉइंट का डिक्रीमेंट देखा गया है। नेक्स्ट हमने देखा 2011 में मेल का रेशियो है 62.35 करोड़ साइज ऑफ पॉपुलेशन, वही फीमेल का 58.65 साइज ऑफ पॉपुलेशन दिया गया। तो यहाँ पे 4 करोड़ का डिफरेंस देखा जा रहा है। सो यहाँ पे 51.54 टोटल परसेंटेज देखा जा रहा है और यहाँ पे 48.56। तो यहाँ पे चलो परसेंटेज वाइज थोड़ा इन द सेंस 36% का इंक्रीज है और यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज देखा गया, यानी मेल रेशियो में थोड़ा डिक्रीज देखा गया। टोटल 121.02 और 100% का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये सेंसस रीडिंग 2011 में से निकाला गया है। सो लेट अस सी द न्यूमेरिकल जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो परसेंटेज को डेफिसिट करता है, ये बताया गया है। बट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट लाइन से ही समझा दिया कि ये जो है परसेंटेज में दिया गया है। यहाँ पे डेटा टेबल का सोर्स कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट अस सी द एनालिसिस एंड द कंक्लूजन। ओके, एनालिसिस एंड कंक्लूजन देखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रीड कर रही हूँ, लिसन इट आउट केयरफुली। The consistent increase in the male-female population during the period 1951 to 2011 is a result of a high population growth rate। तो यहाँ पे 1951 से लेके अगर आप देखो 1951 से लेके 2011 की बात करो तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो the portion of the total population increase हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन इंक्रीज हुआ है ये हाई पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाता है। नेक्स्ट, if it is presented in present, the male population in the total population was 51.37% in 1951, which rose to 51.54% in the 2011. It shows 0.17 पॉइंट राइज इन द मेल पॉपुलेशन। सो कहीं ना कहीं अगर आप इस पोर्शन पे कहीं ना कहीं देखो, इस पोर्शन यानी इन द पोर्शन ऑफ दिस पोर्शन, तो यहाँ पे मेल की परसेंटेज में देखो तो फर्स्ट 1951 में 51.37 था जो कि अभी लास्ट 2011 में
51.57 यानी यहाँ पे सिर्फ प्लस 0.17 डेसिमल का इंक्रीज देखा गया है। बाकी तुम देखो तो इतना ज़्यादा इंक्रीज है ऐसा बोला नहीं जा सकता, डेसिमल में ही इंक्रीज देखा गया है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि एक पॉइंट ऑफ रेज मेल पॉपुलेशन में देखा गया है। इन 1951 female population was 48.63 which decreased to 48.46%, which deficit minus 0.17 in comparison to the males. Decreasing ratio of the female population is a matter of concern. This fall in female population is a challenge for फ्यूचर ऑफ आवर सोसाइटी। सो जैसे हमने मेल का देखा वैसे ही फीमेल की देखे तो 1951 में 48.63 था और यहाँ पे 48.46 यानी आपको दिख रहा है डेसिमल पॉइंट में -17 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जहाँ मेल में इंक्रीज हुआ है वहाँ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल में डिक्रीज नजर आ रहा है जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। वाई द मैटर ऑफ कंसर्न? कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ऑलरेडी 1000 में 866 लोग की फीमेल मिलते, 1000 मेल पे 866 फीमेल देखे जा रहे, यानी कि बाकी के जो पोर्शन है कितने बाकी के बचे 100 एंड जो 44 पीपल है वो लोगों को गर्ल, यानी यू नो दैट इन पॉपुलेशन ऑफ अवर ट्रेंड इंडिया हो कि फॉरेन कल्चर हो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग क्वालिटी तो फॉर 1 मेल 1 फीमेल मस्ट बी देयर ये माना जाता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी 144 फीमेल जो है लैकिंग में है, कम है, जो कि फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है ये माना जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस हियर वी आर कंप्लीटिंग द मेल एंड द फीमेल पोर्शन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द जेंडर रेशियो इन इंडिया। तो जेंडर रेशियो की अगर हम बात करते तो एक्सटेंड ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, जैसे मैंने बोला 1000 मेल के ऊपर कितने फीमेल है उस रेशियो के, यानी जेंडर वाइज मेल एंड फीमेल की जेंडर वाइज हम देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। द नंबर ऑफ फीमेल इन द कंट्री पर 1000 मेल is identified as sex ratio और general ratio और female male ratio। तो 1000 मेल्स के ऊपर कितने फीमेल्स देखे जाते, जैसे 1000 में 1000 यानी इक्वल रेशियो हुआ, तो इस रेशियो जो हम रीड करते हैं उसे सेक्स रेशियो बोला जाता है, जेंडर रेशियो बोला जाता है या मेल फीमेल रेशियो भी बोला जाता है। एज आई सेड, हमेशा बोलती हूँ इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी मैच्योर बनना पड़ता है। यू नो दैट कहीं ना कहीं फॉर अ मैन अ वुमेन इज दैट, तो इस तरीके से कैलकुलेशन सोसाइटी या कल्चर के अंदर देखा जाता है। तो यहाँ पे ये रेशियो के ऊपर भी कैलकुलेट किया जाता है। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पैराग्राफ। Gender ratio occupies an important place in the study of population. Falling numbers of female per 1000 males creates various implications in the country. If there is skewed gender ratio, number of problem arises in the economic regarding marriage, family, reproduction, etc. By getting a clear picture of the gender ratio, it is possible to understand the cause of adversity in gender ratio and the effect can be made to solve the same. तो कहीं ना कहीं gender ratio क्या करता है, बहुत ही important जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या जगह जो है जेंडर रेशियो लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे 1000 मेल के ऊपर फीमेल की पोर्शन जितना कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है। अगर हम स्क्यूड जेंडर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो अगर कम होता जा रहा है तो उससे क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैरिज नहीं होगा, ऑलरेडी आई सेड 1000 में 144 लोगों को गर्ल्स की लैकिंग देखी जाती है, यानी वो 144 को शादी नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, फ्यूचर जनरेशन क्रिएट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे पिक्चर जो है हमें जेंडर रेशियो से ही पता चल पाता है। कॉज ऑफ डाइवर्सिटी एडवर्सिटी इन द जेंडर रेशियो, क्या रीजन है इस तरीके का एक डिफरेंस देखा जाता है और उसमें क्या एफर्ट लगाना चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें जेंडर रेशियो समझने से ही पता चलता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। There are various developed countries where the gender ratio is more. Females are more than the 1000 for every 1000 male. In India, with the exceptions of Kerala, all other state has low female ratio. According to 2011 data, for every 1000 male, there were 1084 females in Kerala. The fewest female population as per 1000 males was 879 in Haryana.
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए है, यूके है, सो ऐसे जितने डेवलप्ड कंट्रीज है यहाँ पे जेंडर रेशियो मेल टू फीमेल 1000 फीमेल की अगर काउंटिंग करें तो मेल्स की काउंटिंग कम थी और फीमेल की ज़्यादा देखा जा रहा था। इंडिया के अंदर भी केरला के अंदर 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा देखा जाता है, बाकी सारे कंट्रीज में या बाकी सारे स्टेट में वो कम देखा जाता है। फीमेल मेल रेशियो की बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 में जो रीडिंग किया गया था उसमें 1000 मेल्स के लिए 1084 फीमेल्स केरला में है, यानी 84 एक्स्ट्रा फीमेल्स 1000 के लिए देखा जाता है। जो कि लो फीमेल प्रोडक्शन की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 1000 मेल्स के ऊपर सिर्फ 879 मेल्स ही देखे जाते, यानी 100 एंड वी कैन से दैट 21 लेस फीमेल इन द पोर्शन। सो क्यों केरला में इतना ज़्यादा है? क्योंकि केरला में कहीं ना कहीं एजुकेटेड 99% एजुकेशन केरला में ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए वहाँ पे फीमेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है। बट हमारे यहाँ अभी भी ये प्रेफर नहीं किया जाता। हरियाणा में ज़्यादातर लोग फीमेल जो है बर्थ राइट को वी कैन से दैट स्टॉप करते हैं। इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं ये डिफरेंस देखा गया है। और ये क्यों देखा गया, किस तरीके से, इसका पैराग्राफ नेक्स्ट पोर्शन पे हम डिटेल में देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग इस टॉपिक के ऊपर आगे भी हम चीजें देखने वाले। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the male and female ratio of the population in India. After that we have seen about the general ratios theory in a very detailed manner. So before ending the portion, let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So male female ratio की अगर हम बात करते तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंटेज का मेल देखा जाता है और कितने परसेंटेज का फीमेल देखा जाता है, उसके ऊपर काफी डिटेल में हमने देखा। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, बट उस हिसाब से मेल कितने बढ़ रहे और फीमेल कितने बढ़ रहे वो जानना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 2011 की जो सेंसस रीडिंग है उसमें से हमने 1951, 1991 और 2011 की डेटा को डिटेल में देखा। सो इस डेटा के अंदर 3 साल, यानी एक तो 1951 से लेके 1991 40 इयर्स के डिफरेंस में एक डेटा देखने को मिला। सेकेंड 1991 से लेके 2011 यानी 20 इयर्स के गैप का एक डेटा देखने को मिला। अब इस डेटा के अंदर हमने बाइफ्रिकेट किया, यानी 1951 में जो 36.1 पीपल ऑफ द रेशियो देखा गया था करोड़ में, सो उसमें से 18.56 जो है कहीं ना कहीं मेल थे और 17.55 जो थे वो फीमेल थे। इसका परसेंटेज भी हमें रिवेल किया गया था। नेक्स्ट हमने 40 इयर्स के बाद 1991 का डिटेल देखा, जिसके अंदर 84.63 का डिटेल देखा गया था। इन करोड़ पीपल इंक्रीज वॉज बीन सीन। 36 में से 84 का इंक्रीमेंट देखा गया था, जिसमें से 43 जो है वो मेल कैटेगरी का वी कैन से दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन था और फीमेल का 40% देखा गया था। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है रेशियो के अंदर सेम अगेन यहाँ पे जो है मेल में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला और फीमेल में थोड़ा इंक्रीज इन द पॉइंट ऑफ डेसिमल परसेंटेज में देखने को मिला। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा 2011, जिसमें से 121.02% ऑफ द इंक्रीमेंट देखने को मिला, जिसमें से इफ यू आर सीइंग द इंक्रीमेंट ऑफ द फीमेल एंड मेल 62 एंड 68 पे देखा गया, यानी 62% जो है पोर्शन ऑफ द पीपल जो है वो फीमेल थे और 68 जो है वो कहीं ना कहीं कौन था, तो मेल देखा गया। रेशियो की बात करें परसेंटेज की, अगेन 54 पॉइंट डेसिमल में कोई डिफरेंस दिखा तो उसमें भी 43 और 40 पॉइंट कुछ डेसिमल डिफरेंस में देखने को मिला। अब ये सारी चीजों को टोटल में 100% हमने देखा 36, 84 एंड 122। एनालाइज में हमने ये डिटेल में देखा कहीं ना कहीं कि जो कंपैरेटिवली जो पोर्शन ऑफ द फर्स्ट 1951 से 2011 तक का मेल का जो राइज ऑफ पॉपुलेशन देखा गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल
प्लस 0.17% का डिफरेंस 1951 और 2011 में देखा गया है। यानी ये 50 ईयर्स के अंदर, 5 डिकेड्स के अंदर हमें प्लस 0.17 देखा गया। नेक्स्ट पोर्शन में हमने ये देखा द पोर्शन ऑफ फीमेल की, सेम फीमेल की बात अगर हम करें तो उस पोर्शन में भी माइनस 0.70 का डिक्रीज जो है फीमेल कैटेगरी के पॉपुलेशन के साइज और ग्रोथ रेट में परसेंटेज में देखा गया। ऑल्थो वी कैन से दैट कंटिन्यूअसली इंक्रीज तो हो रहा है, बट एक परसेंटेज के व्यू में देखे तो वो डिक्रीज होता हुआ नजर आया। तो यहां तक का डिटेल हमने एनालिसिस और कंक्लूजन में देखा। कहीं ना कहीं ये बोला गया है जिस तरीके से फीमेल की कैटेगरी जो कम हो रही है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न जो है फ्यूचर प्रॉब्लम के लिए हो सकता है। ये तक डिटेल हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा जेंडर रेशियो। व्हाट इज जेंडर रेशियो? जेंडर रेशियो मतलब 1000 मेल्स के ऊपर कितने फीमेल्स है, ये जो काउंटिंग होता है इसे जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो, रेदर देन दैट मेल फीमेल रेशियो भी बोला जाता है। सो यहाँ पे मेल फीमेल रेशियो, जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो में ये माना जाता है कि 1000 मेल ग्रुप के ऊपर कितने फीमेल देखा जाता है। सो यहाँ पे इस टॉपिक को क्यों देखा जाता है उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंस देख लो। कहीं ना कहीं मेल और फीमेल दोनों को इक्वली ग्रो होना चाहिए ये माना जाता है, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल दोनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विदाउट मेल फीमेल इज नथिंग एंड विदाउट फीमेल मेल इज नथिंग, ये वाला एक प्रोवर्ब भी इंग्लिश में माना जाता है। इन द सेम मैनर एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन तो ग्रो हो रहा है, बट उस हिसाब से दोनों पोर्शन ऑफ द जेंडर्स आर प्रॉपरली डेवलपिंग और नॉट, ये जानना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम उसके रिलेटेड ना हो, इसके लिए हमें देखना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं हमने जो लास्ट देखा था मेल और फीमेल का पॉपुलेशन ग्रोथ, उसमें ही हमने देखा कि मेल के कंपैरेटिव फीमेल का ग्रोथ कम देखा जा रहा है। तो 1002 लेस कहीं ना कहीं फीमेल देखे जाते। इवन आई एम नोइंग दैट के 1000 के ऊपर 864 जो है पोर्शन ऑफ द फीमेल हैज बीन सीन इन द ऑल ओवर इंडिया का डेटा ये मैं बता रही हूँ। बट धीरे धीरे वो इंक्रीज तो हुआ है, अभी 900 के स्लैब में कुछ चल रहा है। गुजरात का कुछ अलग से कैलकुलेट होता है और सबका ऐसे अलग अलग देखा जाता है। अगर ये कंसर्न की बात करें क्यों ये जानना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं यू नो दैट अगर अनइक्वालिटी ये पॉपुलेशन में देखा गया जेंडर बेसिस पे, तो उसके रीजन की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेदर देन दैट सोशल बैरियर्स भी शुरू हो सकते हैं, जैसे मैरिज, रिप्रोडक्शन, फ्यूचर जनरेशंस के प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें देखा जा सकता है। इसीलिए वो सारी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमें जेंडर रेशियो निकालना पड़ता है। जेंडर रेशियो 2011 की जो कैलकुलेशन में हमने ये देखा कि वेरियस डेवलप्ड कंट्री जो है वहां पे मेल के कंपैरेटिवली फीमेल्स का रेशियो ज्यादा है, बट इंडिया के अंदर मेल के कैलकुलेशन में इंडिया का जो फीमेल कैलकुलेशन है वो कम देखा जाता है। बट सिर्फ एक्सेप्ट केरला, केरला के अंदर 1000 मेल्स के ऊपर 1084 फीमेल्स देखे जाते हैं, जबकि हरियाणा के अंदर सबसे कम 1000 मेल्स के ऊपर 879 जो है कहीं ना कहीं फीमेल पोर्शन देखा जाता है। इन दिस सेंस वी कैन से दैट के हरियाणा के अंदर वेरी लेस फीमेल रेशियो देखा जाता है। सो ये अनइक्वालिटी को हटाना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और भी इसके रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे। आज का पोर्शन यहाँ तक था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.